Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are also preparing for your examination pretty well. So this video is very important if you want to know about what is the scope of MSc Biotechnology. As you can see this slide, I have included one very important topic, that what is the scope after your MSc examination, because everybody asked me that what I can do after my MSc in biotechnology, or let's say any branch of life sciences. Is there any good opportunity, or should I blindly follow the academia like after MSc without any such guidance? I have to mandatorily go for PhD. Is it so? So I will answer all these questions in this single video. So this will be a very beneficial video for all of you जिन्हें लगता है कि MSc Life Sciences करने के बाद में कोई भी scope नहीं है. So my dear friend, do watch this video till the end. I will let you know the complete roadmap that how you can utilize your master's degree to earn a very decent amount, and through that your career will grow up to so many levels. So without further delay, don't forget to subscribe the channel and let's start the video. So आज का टॉपिक जैसे कि मैंने बता ही दिया है, मैं पर्टिकुलरली आई विल फोकस ऑन द एंट्री लेवल, बिकॉज ऑफ कोर्स MSc के बाद में आफ्टर completing your MSc in any branch of life sciences, you can become a entry level scientist, that is known as scientist B. So what exactly it is? Who is a scientist B? So basically it is an entry level group A gazetted officer, and you can earn through your hard work a permanent position and different central bodies like different institute. I will let you know कौन कौन advertise करता है, कहाँ कहाँ पे आप apply कर सकते हैं. So you will be having both research as well as administrative role. यानी साइंटिस्ट का रोल सिर्फ और सिर्फ रिसर्च में नहीं होता, देर आर सो मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स एज वेल, एंड यू विल बी गेटिंग ए ऑफर और एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया. सो नाउ आपको पता चल गया है कि MSc के जस्ट बाद आपको कौन से लेवल में एंट्री मिलेगा. आपको साइंटिस्ट बी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं विदाउट PhD. मैं फिर से कह रही हूँ, यू डोंट नीड PhD टू बी एलिजिबल फॉर साइंटिस्ट बी. येस, इट इज़ डिज़ायरेबल and also it is preferred many a times, like if there are two candidates, one is PhD and one is non-PhD. Of course, if the PhD is showing his or her degree, his skills, his research output, so he or she will be preferred, but it is not mandate. So you cannot just think over it that if you are a only MSc that you are not eligible. No, scientist B, as I told, it is an entry level officer job and it is not having the requirement of PhD. अगर आप MSc हैं, well and good, आप अप्लाई कर सकते हैं. नाउ पे स्ट्रक्चर. सो बेसिकली 7 CPC पे लेवल 10 मिलता है. बेसिक पे होता है अबाउट 56,000, and along with that basic pay you are also having the DA, HRA and TA as per your city. सो ग्रॉस सैलरी की अगर हम बात करें तो सिटी वाइज एक रेंज हम मान के चल सकते हैं 75,000 to 95,000. अगेन ये रिवाइज होने वाला है अभी 8 पे लगेगा तो, बट करेंटली यू कैन सी अबाउट 1 लाख तक आप अर्न कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर MSc इन लाइफ साइंसेस. सो क्या ये इतना ईजी होगा? क्योंकि MSc तो हर साल कितने सारे बच्चे करते हैं, तो क्या ईजिली आप अचीव कर सकते हैं इसे? ये भी जानेंगे अभी के ही वीडियो में. Don't forget to watch till the end. I am again requesting, and don't forget to hit the subscribe button. Now, how your career will grow if you join any institute as scientist B. So as I told, it is an entry level. Entry आपकी हो गई MSc के बाद, आप scientist B बन गए. After like thorough evaluation of your performance, your output, you will be upgraded to scientist C, then D, then E, and eventually to G, the senior most. So
This B is in very entry level. So you can promote it based on your experience and performance and your research output, and you will also get the annual appraisal, right? अगर हम लोग बात कर रहे हैं बी से सी हो रहा है, सी से डी हो रहा है, प्रमोशन कब होगा? प्रमोशन विल ओनली टेक प्लेस इफ यू आर प्रोवाइडिंग दी करेक्ट आउटपुट. कुछ रिसर्च आउटपुट आप सच में प्रोवाइड कर रहे हैं, आप डिजर्व कर रहे हैं, तभी जाके आपका अप्रेजल होता है. आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपका अपग्रेडेशन होगा, प्रमोशन होगा. सो आप डायरेक्ट, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है डायरेक्टर या फिर सीनियर साइंटिस्ट बनने का. सो ये तो रहा क्या क्या आप कर सकते हैं बी बनने के बाद में. नाउ, who are the major government bodies who are involved in offering positions like साइंटिस्ट बी? कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं? द वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट ICMR, लाइक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. यहाँ पे आप मेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च रिलेटेड पोजीशंस में, प्रोजेक्ट्स में, नॉट ओनली जस्ट टेम्पररी प्रोजेक्ट्स में, टेम्पररी प्रोजेक्ट्स के अलावा दे ऑल्सो ऑफर द परमानेंट वन थ्रू आउट द ईयर. वो अलग अलग पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं. और एग्जामिनेशन मोड क्या होता है वो भी मैं बता देती हूँ. रिटन प्लस इंटरव्यू मोड होता है. रिटन प्लस इंटरव्यू, सो यू कैन ऑप्ट इट एज पर योर, लाइक प्रिपेयर करके अच्छे से अगर आप रिटन आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, देन इंटरव्यू, सो यू कैन मेक इट. अपार्ट फ्रॉम दैट ICMR, CSIR, as you all know, the major institutes offer the CSIR, like most of the institute of CSIR offer this position of scientist B. So basically if you are from an industrial background, let's say industrial biotech or any other life science research branch, so you can apply in the CSIR lab. DBT, DRDO, one of the most premier institute, the Food Safety and Standard Authority of India, Food Safety Research if you are from Food Biotech branch, and also this one for environmental research. So there are so many different government bodies who offer different position, and the level is different for both. Like all the institute offer different position through different mode. Now next one, what is the minimum qualification required to become a scientist B? So the minimum requirement to become a scientist B, as I told, only MSc and not PhD. MSc in life sciences, let's say biotechnology, microbiology, biochemistry, genetics, food tech, or any other branch related to life sciences or biomedical sciences. So what is the minimum threshold to become eligible even after having the MSc? So if you are having a score of minimum 55 to 60%, like first division, then you are eligible. So अब सब बोलेंगे कि 50 है, 55 है, 60 है, 65 है. तो हम जस्ट एक एलिजिबिलिटी मिलना और वो जॉब मिलना इज़ टू डिफरेंट थिंग. यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बस एक एलिजिबिलिटी के बेसिस पर आप क्लेम कर सकते हैं कि ये जॉब मुझे ही मिलनी चाहिए थी. नो, इफ़ यू आर हैविंग ओनली 60%, although you are having first position in your masters, but if a candidate is having 80%, then you can see the difference. तो मार्क्स वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जस्ट एक एलिजिबिलिटी होता है. ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स. कितने स्किल्स आपके पास हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज स्किल्स के बेसिस पे आपको जज किया जाता है, एंड नथिंग एल्स. And also one more thing, relevant research experience preferred. If you are having some prior research experience, ये मैं अपने कितने वीडियो में कितनी बार मैंने बोल चुका है कि अगर दो कैंडिडेट्स हैं, if one is having different experience and different fields, so obviously he or she will be preferred. क्योंकि जिनको शुरू से कुछ नॉलेज हो उनको सिखाना इजी होता है, वो अपना काम कर सकते हैं, रिसर्च को कैरी ऑन कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू दी टोटली न्यू कमर को. अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल न्यू कमर को कोई ऑफर या कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, बट इट डिपेंड्स. जनरली स्किलफुल या फिर जिनको प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस है उन्हें प्रेफर किया जाता है.
सो ये तो हो गया मिनिमम क्वालिफिकेशन. नाउ व्हाट इज द एज लिमिट फॉर साइंटिस्ट बी? यूजुअली इट इज 35 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी. कभी भी कुछ भी चीज़ मैं अपने चैनल पे बताती हूँ सो इट इज़ फॉर जनरल कैटेगरी, और उससे आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं फॉर डिफरेंट कैटेगरीज. लाइक ओबीसी के लिए थोड़ा सा कम, एससी के लिए उससे थोड़ा कम, एसटी के लिए उससे भी कम. So for general category it is 35, but age relaxation you will be getting if you are having certain criterias. Now I have written this age relaxation for reserved categories, and sometimes this may vary from different project to project, but usually it is 35 years, the maximum age limit. Now, what are the entry pathways you can opt? So, as I told, MSc with written exam and no interview. Like some of the bodies don't take any interview, they only offer the written exam. And if you qualify, you will be getting a training and then you will be hired. So, this is one mode. Another is MSc with CSIR net qualification along with experience. You can apply in any of the project based, let's say, or interview and written examination as well as interview mode. Apart from this, if you are having MSc and then also you did your PhD, and then you can become scientist B. So as I told, there is not a single mode. सिर्फ ऐसा नहीं है कि MSc के बाद ही आप जा सकते हैं. MSc के बाद आपने PhD किया तो बट ऑब्वियस है, अगर आपने बायोटेक में या लाइफ साइंस के किसी भी पोजीशन किसी भी ब्रांच में अगर आपने अपना PhD कंप्लीट किया है, सो ऑफ कोर्स यू विल गो फॉर सम साइंटिफिक पोजीशंस. तो एंट्री लेवल साइंटिस्ट भी में आप अप्लाई कर सकते हैं. बट ये वीडियो बनाने के पीछे का मेरा मोटिव ये है कि आपको बताना कि PhD ही ज़रूरी नहीं है अगर आपको एंट्री लेवल साइंटिस्ट बनना है. तो MSc के बाद भी अप्लाई करो, जितना अप्लाई कर सकते हो अप्लाई करो, कहीं ना कहीं तो सिलेक्ट हो गए. और अप्लाई करने से पहले अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएशन करो. माय पेन इज़ नॉट, हाँ, अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करो कि क्या वो जॉब तुम डिज़र्व करते हो. अगर आंसर है नो, देन सी कि क्या क्या चीज़ें शॉर्टकमिंग्स है, क्या क्या चीज़ें लैकिंग है, एंड ट्राई टू अचीव ऑल दोज थिंग्स. क्योंकि अगर अपना सेल्फ इवैल्यूएशन आप नहीं कर रहे हैं तो आपको और कोई इवैल्यूएट करे तो फिर आप उस चीज़ को सेटिस्फाइड नहीं होंगे उस चीज़ से. सो नेक्स्ट वन, कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपको क्वालिफाइड होने चाहिए जिससे कि यू कैन ईज द प्रोसेस ऑफ योर सिलेक्शन. लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी कि अगर आप CSIR नेट क्वालिफाइड हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी कि आप गेट किसी में भी लाइफ साइंसेज या लेट्स से बायोटेक में आप क्वालिफाइड हैं विद गुड रैंक. नॉट जस्ट ओनली क्वालिफाइड, गुड रैंक हो आपके पास, ICMR GRF हो आपके पास, DBT GRF हो, DRDO का एक RAC एग्ज़ाम होता है, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है फॉर फूड बायोटेक कैंडिडेट्स. तो वो सब एटलीस्ट आपको इनमें से कोई एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए, सो दैट इट विल शो दैट कि आपके पास कुछ तो नॉलेज है, तभी आपने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है. तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन, मैंने बताया ना, अगर आप सिंपल MSc कर ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं साइंटिस्ट B बन जाऊँ, C बन जाऊँ, तो इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. बट अगर आप इसमें MSc के साथ ही साथ स्किल्स का एड ऑन कर लेते हो, देन यू विल बी गुड टू गो. मैं हमेशा कहती हूँ स्किल्स एड ऑन करो. You need to brush up all your skills apart from your regular MSc degree, because just like you, there are so many students graduating each year, but what makes the difference? The skills, the knowledge. So do achieve whatever you can. Now what are the core laboratory skills required? यानी आपके रेज्यूमे में जो पैनलिस्ट हैं वो क्या ढूंढते हैं कि उस कैंडिडेट को क्या कुछ बेसिक लेबोरेटरी रिसर्च टेक्निक्स आती हैं या नहीं आती है. सो PCR आपको अपने मास्टर्स में कराया ही जाता है. कन्वेंशनल PCR तो आई बिलीव कि कराया ही जाता है हर जगह. उसके अलावा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लोनिंग टेक्निक्स मान लो नहीं कराया जा रहा है, देन ऑल्सो देर आर सो मेनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, एंड ऑल्सो अलग अलग सब्जेक्ट के
7 डेज़, 15 डेज़, 3 मंथ्स, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर वाले इंडस्ट्रीज़ भी हो गए हैं, दे प्रोवाइड द कोर टेक्निक्स, हैंड्स ऑन देते हैं, आप उससे भी सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज कहीं नहीं सिखाया जा रहा है तो आप एकदम बोल दें कि हमें तो सिखाया ही नहीं गया है। आपको खुद से एफर्ट्स करने होंगे, खुद से ही सीखना होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, माइक्रोबायोलॉजी मैं कहती हूँ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। और इसके जितने भी लेबोरेटरी स्किल्स हैं, बेसिक एक बैक्टीरिया कल्चर करने से लेके क्लोनिंग तक का, अगर आपको क्लोनिंग नहीं आता है ठीक है, लेकिन आपको एटलीस्ट बैक्टीरिया को कैसे ग्रो कराना है, फंजाई को कैसे ग्रो कराना है, कौन सा मीडियम है, क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, क्या ग्रोथ रिक्वायरमेंट है, इंक्यूबेशन टाइम क्या है, ग्रोथ कैसे होता है, मॉर्फोलॉजी कैसी दिखती है, ये सब बेसिक चीज़ें एटलीस्ट आपको पता चले ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ थोड़ा बहुत। इसके अलावा एलाइजा है, रैपिड टेस्ट हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। प्रोटीन प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, बेसिक एस्टिमेशन बायोकेमिस्ट्री में जो हम करते हैं, हाउ टू एस्टिमेट प्रोटीन, हाउ टू एस्टिमेट कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें हमें, मतलब कहने का मतलब ये है कि एमएससी में जितने भी बेसिक एक्सपेरिमेंट, जितने पेपर्स होते हैं, 4 to 5 पेपर्स ईच सेमेस्टर हम पढ़ते हैं, तो उसके जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं, ना सिर्फ उसको एक्सपेरिमेंट पर्पस से करो बट एक स्किल की तरह करो कि मुझे यही बेसिक स्किल्स आगे जाके मुझे इसका एडवांस लेवल सीखने में मदद होगी। व्हाट आर द एडवांस मॉलिक्यूलर स्किल्स? अगर आप इनमें से कुछ भी सीख लेते हो, इट विल बी अगेन अ प्लस ऑन योर रेज्यूमे। एज आई टोल्ड, यू हैव टू add on sorry, you have to add on different skills in your CV. अगर आपको कहीं से चांस मिल रहा है क्रिस्पर सीखने का, क्रिस्पर कैस, then it is a very very like good thing. NGS आपको सीखने का मौका मिल रहा है, एंड बेसिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स तो आपको आनी ही चाहिए क्योंकि ये तो कैरिकुलम ही हो गया है आजकल बायोटेक के कोर्स में। बायोइन्फॉर्मेटिक्स आपको आना चाहिए क्योंकि डीबीटी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। एंड इफ़ यू आर डूइंग PCR देन यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू डिज़ाइन अ प्राइमर। नाउ जीन एनोटेशंस एंड प्रोटीन मॉडलिंग से रिलेटेड चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीख रहे हैं तो। अगर आपको सीखना है मुझसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स, डू कमेंट बिलो। स्विस मॉडल जो है जिससे हम 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करते हैं किसी भी जीन का, अगर आपको जानना है डू कमेंट बिलो। मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और एकदम इजी फॉर्म में ताकि आपको समझ में आए। इंस्ट्रूमेंटेशन स्किल्स, एज आई टोल्ड, टेक्निक्स के साथ साथ इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है वो भी पता होना चाहिए। इनमें से अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता, जैसे यूवी आप हैंडल करते हैं एमएससी में, FTIR वगैरह अगर आपने कभी नैनोटेक में काम किया है, नैनो पार्टिकल बनाया है तो आपने किया होगा। प्लांट रिलेटेड अगर आपने कभी काम किया है या प्रोटीन रिलेटेड तो आप HPLC का यूज़ किए होंगे। GC, फ्लो साइटोमेट्री, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, एंड नॉट जस्ट ओनली कॉन्फोकल, बेसिक लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी अगर आपको आता हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में पता हो तो भी आपका काम बन जाएगा। एटलीस्ट आपको थ्योरी तो पता ही होगी कितने टाइप के माइक्रोस्कोपी होते हैं, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का क्या प्रिंसिपल होता है, देन उसके डिफरेंट फॉर्म, कॉन्फोकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ों में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ थ्योरी पढ़ गए और एनालिटिकल स्किल्स तो है ही नहीं आप में, यानी SPSS, बायोस्टैटिस्टिक, जो कि अब मैंडेटरीली इंक्लूड किया गया है, नॉट जस्ट ओनली फॉर दी मास्टर्स बट ऑल्सो फॉर द रिसर्च स्कॉलर्स। उनके कोर्स वर्क में ही बायोस्टैटिस्टिक इन्वॉल्व किया गया है बिकॉज विदाउट द बायोस्टैटिस्टिक रिसर्च कैन नॉट बी डन। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज द वेरी वाइटल पार्ट ऑफ रिसर्च, तो वो आना चाहिए। And apart from this, you should be able to do the graphical representation of your data. Suppose if I am giving some kind of data to you, like X is 1, 2, 3, 4, 5, and Y is the frequency of it, 6, 8, 9, 10, 11, then you should be able to represent it graphically as efficient as you can, as easy as you can. So ये सारे graphical representation आपको पता होना चाहिए। एंड थोड़ा बहुत आपका राइटिंग में भी कमांड होना चाहिए, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, हाउ टू राइट अ रिव्यू पेपर, या एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि रिसर्च ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है। ये सारी चीज़ों का अगर आपके पास आइडिया हो, मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक पेड कोर्स है साइंटिफिक राइटिंग का, नॉट रिपोर्ट राइटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग का है। इफ़ यू वांट
मिनिमल चार्जेस पे आप उसे 89 या 99 में आप उसे देख सकते हैं. दिस इज़ नॉट दैट मच, सो यू कैन वॉच इट इन अ वेरी प्रिटी डिसेंट अमाउंट. एक सिर्फ और सिर्फ 89-99 में आप उसे देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इट. वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा अब लंबा फटाफट करूँगी. यू शुड बी एबल टू लाइक यूज़ योर माइंड टू सॉल्व एनी, लाइक कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ क्रिटिकल इवैल्यूएशन करके आप उसे सॉल्व कर पाए. आपका अपना एक हाइपोथेसिस होना चाहिए. लिटरेचर रिव्यू करने की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपके रिसर्च में कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हाउ यू विल टैकल देम. ये तो इंटरव्यू में भी पहला क्वेश्चन होता है. क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए एज आई टोल्ड. तो ये सारे सॉफ्ट स्किल. एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स क्या होने चाहिए, बजट मैनेजमेंट करना, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, प्रोक्योरमेंट नॉलेज, टीम सुपरविजन. Procurement is the very important part, as I am like doing the same thing. तो मुझे समझ आ रहा है कि मैं अपने, जब मैं ये चीज़ बता रही हूँ तो आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं अपने टाइम पे थी, एमएससी कर रही थी, पीएचडी कर रही थी, पीएचडी करने के बाद में ये चीज़ पता चली कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इक्वली. लाइक जितना आपको एकेडमिक का स्किल्स आना चाहिए उससे ज़्यादा मुझे लगता है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी आना चाहिए. बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी ट्रिकी हाउ टू मैनेज लाइक करोड़ों का अगर प्रोजेक्ट है, लेट्स से 1 CR, लेट्स से 10 CR एंड इवन मोर देन दैट, हाउ यू विल मैनेज दी बजट. कितने का आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, कितने का आप मैन पावर दे रहे हो, कितने का आप कंटिजेंसी दे रहे हो, कितने का आप ये ट्रैवल एंड इसमें स्पेंड कर रहे हो. ये सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको वो सारे काम मिलते हैं. प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है कि नहीं उसका रिपोर्ट किया जा रहा है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं. टीम सुपरविजन, आपके जितने भी आपके साथ के हैं टीम मेंबर्स, वो कैसा काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिकेशन, ये एक बहुत, जैसा कि मैंने कहा आपको प्लस करना है अपने रेज्यूमे में. यू शुड हैव अ पब्लिकेशन. अगर आपका पब्लिकेशन होगा तो आपके लिए ईजी हो जाएंगी चीज़ें. नाउ कॉन्फ्रेंस एंड नेटवर्किंग हो तो आपकी चीज़ें और आसान हो जाएंगी. कुछ चीज़ें आप जिससे नेटवर्किंग करते हो उनके थ्रू पता चलता है. तो जितना आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करोगे आपका माइंड उतना ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, खुलेगा आपका दिमाग कि कहाँ जाना है, क्या करना है, आइडियाज़ मिलते हैं, कोलैबोरेशंस के चांसेस मिलते हैं. नेटवर्किंग का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, सो डू दैट. सो एक आइडियल साइंटिस्ट CV शुड इंक्लूड, मतलब अगर हम बात करें कि आइडियल साइंटिस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है. कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, अपनी रिक्रूटमेंट के चांसेस को इंक्रीज़ करना चाहिए, तो CV में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. रिसर्च एक्सपीरियंस, टेक्निकल स्किल्स, पब्लिकेशन, फेलोशिप क्लियर्ड एंड प्रोजेक्ट हैंडल्ड. ये सारी चीज़ें अगर होंगी, सो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी नहीं सिलेक्ट करेगा. सैलरी ब्रेकडाउन यहाँ पे मैंने बता दिया है, अबाउट 75 to 95 डिपेंडिंग ऑन दी सिटी, क्योंकि HRA चेंज होता है सिटी टू सिटी एंड बाकी चीज़ें भी चेंज होती हैं. लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ये सारी चीज़ें हैं. मेडिकल रीइंबर्समेंट आपको मिलता है, गवर्नमेंट हाउसिंग आपको मिलती है, जॉब स्टेबिलिटी है, प्रेस्टीज तो है ही है, पेंशन है. सो कंपटीशन है यहाँ पे. ऑफ कोर्स इतने लोग निकल रहे हैं तो लिमिटेड वैकेंसी है. अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो आपके लिए चांस है. बहुत कंपटीशन है. प्रोफाइल बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग है, तो आपको CV को चमकाना है. स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड चाहिए, और ये सारे आप प्लानिंग करके चल सकते हैं कि पेपर पब्लिश करना है, स्किल्स लाने हैं, नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना है, ये सारी चीज़ें. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक्ड इट. अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा हो, सो डू कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल.